shall we share एक बार और? Anyone, if anyone wants to join. Harsh, hello Harsh. Jyoti, you have a student account, GitHub Student Spark. Yeah, I have. Okay. Pawan, if you have a GitHub Students account, then it's good. If not, you can sign up for your student account. I have shared the link in the chat. What shall we do? Pawan, if you could respond, then you can share. Like you are known to GitHub or you are new to GitHub. So because you are the only individual member which you have new member in our group. So if you want to, then I can share how to get started. You can type your response in the chat.
Oh, as we have like Pawan, you are there, and I'm starting like once if possible, please to respond that how much you know get or your experience level and get, because if you could share, I am ready to conduct a session for you. This time we haven't promoted our event, so there are lots less amount of audience. So if you could respond, hi Khushi. Hello. Hmm. Khushi, you have a students account, right? GitHub Students वाला pro account. No. So you don't have. तो एक लिंक है चैट में, Yeah. उस पे जाओ एंड साइन अप यूजिंग योर कॉलेज आईडी. Okay. यू विल गेट अ, और वहाँ पे क्या फ़ायदा मिलता है, तो यू विल हैव हॉट लाइक 5-7 फ्री डोमेन्स विथ TLDs लाइक डॉट मी डॉट स्टूडियो डॉट लाइव, और जेट ब्रेन्स का सब्सक्रिप्शन और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन. बाकी कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसके सब्सक्रिप्शन है. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप टू. क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, मैंने रिक्वेस्ट डाली थी एंड ये अप्रूव हो गया है मेरा. हो गया है. या. चलो बढ़िया. तो अब उसको तुम क्लेम कर सकते हो लाइक इफ़ यू होस्ट अ प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, तो गिटहब पेजेस से कनेक्ट कर सकते हो अपना एक डोमेन एंड यू कैन ओके. पुश योर वेबसाइट लाइव. ये बेसिक फीचर है. बाकी बहुत सारे टूल्स हैं यहाँ पे, CI/CD वाले भी है, और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ ना कुछ रखा है इन लोगों ने करके. मतलब इनकी कम्युनिटी है, एक वेबसाइट है, क्या नाम था, आई शेयर दैट टू इन द ग्रुप. क्या गिटहब. हाँ ये वाला. इस पेज पे जाके दे लिस्ट द प्रोडक्ट्स लाइक क्या क्या ओपन सोर्स गाइड्स और स्टफ, और कुछ कुछ रिपोजिटरीज को भी सिलेक्ट करके रखते हैं कि आप यहाँ पे जाके कोलैबोरेट कर सकते हो इनिशियली.
Thank you for answering, Gopal. So if you want to learn something about GitHub, like your the level which you are on GitHub, like if you know Git, then you can text in the chat if you wish. So that, and if you are a complete beginner, then you can tell me so that I can start sharing. Because without knowing what your experience or expertise level, I won't be able to. बोलने मत लगा करो यहाँ इस रूम में आकर बैठे का. Okay, so as you mentioned, you have a little idea about GitHub. So GitHub beauty is all in Git. Git is a version control system. So to use GitHub efficiently, you will have to download Git. अब Git क्या करता है? I'll share in short. ठीक है. So this is I'm creating a folder here. So अभी whatever changes you make, यहाँ पे जो I made a folder using mkdir command, and this command created a document, sorry, a folder in here. अभी अगर हम इसमें कुछ भी change करेंगे, तो like I create a file h hello.txt. ठीक है, तो एक फाइल क्रिएट हो गया. अगर हम उसको फिर डिलीट कर देते हैं यहाँ से, लाइक कमांड डिलीट, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि व्हाट हैपेंड टू द फाइल, वेयर द फाइल इज. बट if I make this folder a git folder, so I we can do it using, sorry, git init. तो इससे क्या हुआ कि ये फोल्डर अब git folder बन गया. Now this can, everything on this folder can be tracked. I hope I'm not on mute. And once the tracking starts, whatever you make in this folder, you can track it. Like .txt. And to check whatever you are adding, you can add git status, and it says, देखो, this repository has been initialized with git, and there are files which are untracked. Untracked मतलब कैसे explain करूँ? So git में क्या होता है कि once you create a file, once you fire up a repository, जिसको git repository बोलते हैं, और यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको, आर वी स्टिल कनेक्टेड, लाइक कोई रिस्पॉन्ड कर सकता है इन द बिटवीन. That is a word. Okay, you know this, right? Jyoti, I need a help. Yeah. So if Pawan responds in chat, do let me know because it's difficult to monitor. So Okay. as he mentioned, he knows a bit of Git. So
So I'm a bit confused here that where he wants to start learning, because if he knows about the staging area and stuff, there is no point of explaining again. Yeah. But still, okay. So if you are aware, Owen, can you tell more about it? Do you know how to copy that repository into local repository? you know about git clone. Yeah, what is the significance of git clone? You can text, no worries. There is no point of unmuting if you are not comfortable. Cool. So can you share a bit like कहाँ तक यूज कर चुके? You know about branching? Yeah, why do we create branches? Cool. तो मान लो यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, लाइक अभी हम लोग यहाँ पे एक दो तीन चार पांच लोग हैं एंड वी फाइव आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. तो तुम कैसे ट्रैक करोगे कि अगर इमेजिन लाइक यू आर वर्किंग इन यू आर ड्राइंग अ लाइन, और अगर उसी लाइन में ज्योति कम्स इन एंड ड्रॉज अनदर लाइन, तो पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट शी हैज़ डन या फिर तुमने क्या किया था और क्या ओवरलैप कर रहा है. तो इनसे बचने के लिए व्हाट गिट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, देयर इज़ अ फीचर कॉल्ड ब्रांचिंग. उसमें क्या होता है कि जो पहले जहाँ पे काम एंड कर रहे हो, लाइक देयर इज अ मास्टर ब्रांच विच इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ. अब यू वांट टू ऐड सम अदर फीचर्स टू योर प्रोजेक्ट, तो तुम क्या करोगे, उसी कोड का एक कॉपी बना लोगे एंड दैट इज नोन एज अ ब्रांच. और उस ब्रांच में तुम जो भी एडिट करोगे दैट वोंट बी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल सोर्स कोड. उसको सोर्स कोड को ओरिजिनल में चेंजेस करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पुल रिक्वेस्ट. और अगर तुम उस रिपोजिटरी के ओनर हो देन यू कैन मर्ज इट योरसेल्फ. अगर तुम ओनर नहीं हो तो you'll have to create a pull request. फिर जो admin होगा उस प्रोजेक्ट का, they'll approve that pull request. I'll show you how it's done. Like पहले दिखाता हूँ कि है क्या ये चीज़, and then I'll share कि how it's done. So this is a project, ठीक है. तो यहाँ पे दिख रहा है ना, दो ब्रांच है. देर इज अ ब्रांच कॉल्ड मेन, देर इज अ ब्रांच कॉल्ड वर्किंग. तो वो मेन ब्रांच इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ. ठीक है, इसमें मतलब वंस यू मेक द फाइनल फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट, सो वी कंसिडर इट मेकिंग इन द मेन ब्रांच. और उसके बाद उस ब्रांच का कॉपी बना के नया फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं. और जब उसमें लगता है कि टेस्टिंग, मतलब बेसिकली ये क्यूए के बाद होता है, क्वालिटी एंड टेस्टिंग के बाद, फिर उसको मेन ब्रांच में मर्ज करते हैं. लाइक सी, इफ आई वांट टू मर्ज दिस वर्किंग ब्रांच टू द मेन ब्रांच, so there is an option called open pull request. So what this branch will do, तुम्हारा जो वर्किंग में जो अपडेट है, यू कैन क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट टू मर्ज दैट. अब आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ ब्रांच. जैसे यहाँ पे गिट इनिट किया था, गिट ऐड डॉट, तो ये जो मेरा hello डॉट txt है वो स्टेजिंग एरिया में चला गया. आई विल मेक अ फर्स्ट कमिट. ठीक है, ये मेरा पहला कमिट हो गया. अब इफ आई लिस्ट ब्रांच, तो यहाँ पे बस दिखाया कि देयर इज जस्ट वन ब्रांच विच इज मास्टर ब्रांच. तो टू क्रिएट अ ब्रांच, गेट चेकआउट डैश बी, और ब्रांच का नाम कॉल, लेट्स कॉल इट अ वर्किंग ब्रांच. ठीक है, तो अब जब हम लोग यहाँ पे ब्रांच करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा मेरे पास दो ब्रांच है एंड दिस इज अ शॉर्टकट कमांड कह सकते हो. गेट ब्रांच बनाने के लिए गेट ब्रांच, फिर ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है तो एक नया ब्रांच बनता है. बट व्हेन यू डू चेकआउट, तो नया ब्रांच क्रिएशन एंड यू आर ऑटोमेटिकली स्विच टू दैट वर्किंग ब्रांच. अभी क्या होगा कि जो भी चीज़ आई हैव मेड चेंजेस इन दैट, तो वो यहाँ पे दिख रहा होगा. बट इफ आई मेक सम अदर, लाइक इफ आई ऐड अ फाइल टू दिस, वन साइड जो गेट स्टेटस, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि दिस इज नॉट इन ट्रैकिंग येट, बिकॉज अभी तक हम इस वाले ब्रांच में आके ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं किए थे. तो इफ आई ऐड गेट ऐड डॉट गेट कमिट नोशन टू, कौन सा ब्रांच था यार,
तो ये हो गया तुम्हारा दूसरे वाले ब्रांच पे, वर्किंग ब्रांच पे। अगर हम यहाँ से वापस जाते हैं मास्टर ब्रांच पे, तो वहाँ पे ये नहीं शो करेगा। यहाँ पे मेरा notion डॉट txt नहीं दिखा रहा है, बिकॉज अभी तक जो मेरा रिव्यू है, मतलब जो आई हैव चेंजेस मेड, तो आई हैवंट मर्ज्ड इट विद द मेन मास्टर ब्रांच येट। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अगर 5-7 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जो मेन मास्टर ब्रांच है वो CI/CD के थ्रू प्रोडक्शन में है, तो अगर कोई भी आके मास्टर ब्रांच पे चेंजेस कर देगा तो कोड बंद हो जाएगा, मतलब सम बग्स के कारण कोड विल स्टॉप रनिंग एंड एट द एंड कस्टमर्स और द एंड यूजर्स विल सफर। तो इससे बचने के लिए हम लोग मास्टर ब्रांच को नहीं छेड़ते हैं, वी ऑलवेज वर्क ऑन द अनदर सब्सिक्वेंट ब्रांचेस। और जब हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पुल रिक्वेस्ट के थ्रू अपने मास्टर को, लाइक द प्रोजेक्ट के जो मेंटेनर होते हैं, दोज हु आर द लाइक क्रिएटर्स या ओनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो फिर उनको बोलते हैं कि भैया मेरा जो काम था आई हैव डन, तो अब आप लोग कोड रिव्यू कर लो और मैं पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप लोग इसको मर्ज कर देना। ये पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन तुम जब तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे फोर्क करके, फिर तुमको दिखेगा। अभी तो मेरे पास ऑप्शन है कि इफ आई डायरेक्टली वांट टू मर्ज, आई शेयर, आई होप यू आर कनेक्टेड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लाइक समझ में आया अभी तक ब्रांच कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ब्रांच का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो अभी मेरे पास आ गया ये एक रिपोजिटरी। अब तुमको आते हैं रियल सिनेरियो में एक रिपोजिटरी पे पुश करके प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। रीडमी के साथ स्टार्ट करते हैं। Now I have this repository, I'll clone it. Clone, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी एक गेट रिपोजिटरी है। तो अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तो इट सेज कि इट्स अप टू डेट। अब आई क्रिएट अ फाइल। तो मेरे पास एक hello.html फाइल है। आई फायर अप विद HTML, शॉर्टकट यूज करो। ये एक फाइल क्रिएट हो गया। अब आप वापस टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पे करते हैं गेट स्टेटस। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि देयर यू हैव एडेड अ फाइल जो कि ट्रैक नहीं हो रहा है अभी तक, तो आई एड इट टू द ट्रैकिंग एरिया। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कहता है कि यू शुड नॉट ऑलवेज डू डॉट। डॉट हमेशा नहीं करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर तुम किसी एक छोटा सा चेंज करते हो और बाकी प्रोजेक्ट के सोर्स कोड में चेंज हो रहा है, तो इफ़ यू ऐड डॉट, डॉट मीन्स ऑल एंड यू विल बी इन ट्रबल। तो हमेशा कहते हैं कि फाइल का नाम लिखना चाहिए। तो आई एम राइटिंग दिस, एडेड टू द स्टेजिंग एरिया। अब हम इस पर कमिट करते हैं। कमिट मैसेज शुड बी डिस्क्रिप्टिव। अभी ये डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अगर तुम एक टीम में काम कर रहे हो तो इसके लिए तुम्हें गाली सुनना पड़ेगा कि क्या इनिशियल कमिट लिख के रखे हो, बट स्टिल अभी करते हैं। ये हो गया, तुम्हारा कमिट भी हो गया। नाउ पुश इट टू द मेन ब्रांच। तो वंस यू रिफ्रेश यू विल सी कि तुम एक मेन ब्रांच में यहाँ पे पुश किए हो। अब आते हैं हम लोग मास्टर, यहाँ पे ब्रांच क्रिएट करते हैं। ब्रांच, ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये ब्रांच क्रिएट हो गया। ब्रांच का नाम है नेम। अब आई चेक इट चेकआउट, मतलब इस ब्रांच में स्विच करेंगे तो देयर इज इस कमांड को बोलते हैं गिट चेकआउट, सॉरी गिट चेकआउट नेम। आ गए हम लोग नेम ब्रांच में। व्हाट आई डू नाउ, आई अगेन ओपन माय VS कोड। अभी यहाँ क्या सीन है,
ये देखो ये पहले मेरा मेन ब्रांच था, नाउ VS कोड बता रहा है कि वी आर इन नेम ब्रांच। अब नेम ब्रांच क्या करेगा, अगर इफ आई ऐड यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, आई एम पवित्र एंड दिस सेक्शन इज ऑन बेसिक्स ऑफ गिट, आई सेव इट। देयर इज अ शॉर्टकट टू, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आई विल शेयर दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन। अभी यहाँ से दिखाते हैं टर्मिनल से। तो वंस यू डू गिट स्टेटस, तो यहाँ तुमको ये बताएगा कि hello.html मॉडिफाई हुआ है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, you'll have to add it to the staging area because जो नेम ब्रांच था उसमें ये स्टेज में ऐड नहीं हुआ था, so I added to the staging area। दोबारा स्टेटस करूँगा तो ये ग्रीन ग्रीन दिखेगा, मतलब ठीक है भैया तुमने जो किया था अब वो रेडी है कमिट होने के लिए, तो I'll commit it, git commit -m added p tag with description CRIPTL। चलो ये हो गया मेरा। अब आई चेक यहाँ ये हो गया ना सब कुछ, इट्स क्लियर। अभी क्या होगा कि आई पुश इट। अब पुश कहाँ करेंगे, तो ये जो मेरा पुश होगा वो दूसरे वाले नेम ब्रांच में पुश होगा, आई एम पुशिंग इट। अब ये एक एरर दिया, एरर था इसका कि अभी जो मेरा ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन मतलब होता है कि जहाँ सोर्स जहाँ पे तुमको फाइल पुश करना है अपडेटेड, तो यहाँ पे मेरे पास गेट क्या है कि तुम्हारा जो अपस्ट्रीम सेट है वो तुम्हारा मास्टर ब्रांच पे है। अब तुमको उसको नेम पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम दूसरे ब्रांच में पुश कर रहे हो, ठीक है। आई विल कॉपी दिस, पेस्ट इट इन हियर एंड आई विल पुश इट। इसका क्या चेंजेस हुआ आई विल सी इन माय गिटहब सॉरी। तो यहाँ पे आया नेम हैड रिसेंट पुश लेस देन अ मिनट अगो। अगर हमको इसमें देखना है कि पवित्र ने कुछ चेंजेस किया है, क्या चेंज किया है, वो आ जाओ नेम ब्रांच पे और यहाँ पे क्लिक करो इस कमिट पे। तो यहाँ दिखा रहा है कि जो मेन ब्रांच पे जो मेरा फाइल था उसमें लाइन 16-17 नहीं था एंड पवित्र एडेड 2 लाइन्स, ये वाला चीज़। तो ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस। अब क्या करना है कि अब तो मेन ब्रांच को तो अभी भी नहीं पता है कि तू ये क्या चेंजेस किया है। अब मेन ब्रांच को कैसे बताना है, आई शेयर दैट। तो इसका दो ऑप्शन है, या तो तुम अपने टर्मिनल से कर सकते हो अगर तुम ओनर हो उस प्रोजेक्ट के तब। अगर तुम ओनर नहीं हो तो तुमको उसको परमिशन लेना पड़ेगा फाइनल रिपोजिटरी में पुश करने का, उसको पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो हियर आई विल क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये जो मेरा कमिट मैसेज था दैट विल शो, और हमेशा राइटअप में लिखना चाहिए कि क्यों की हो ये पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे तुम थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, टू शेयर अबाउट द स्पीकर एंड द इवेंट डिटेल्स। और यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ पुल रिक्वेस्ट। तो अब जो ओनर होगा प्रोजेक्ट का उसको एक नोटिफिकेशन आएगा कि पवित्र ने एक पुल रिक्वेस्ट किया है। तो अगर तुम उसके तो हाँ, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया एडेड पी टैग, और ये दिस वाज ओपन बाय ओपन 26 सेकंड्स अगो। इफ आई कंफर्म दिस, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म द मर्ज। वैसे कंफर्म तब करते हैं जब तुमको पता हो एग्जैक्टली कि क्या चेंजेस हुआ है। तुम कोड रिव्यू कर लो, वो ये फाइल से ये कमिट चेक कर लो या फाइल्स चेंज देख लो, तो तुम सेटिस्फाइड हो क्या चेंजेस हुआ है। अब तुम जब वापस मेन ब्रांच पे आओगे एंड यू विल ओपन दिस, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा सी द चेंजेस हियर। तो इसका ये मेन मोटिव यही था कि मल्टीपल कोलैबोरेशंस को सपोर्ट करता है ये ब्रांचेस, और फीचर्स को ऐड करने का फ्लेक्सिबिलिटी देता है विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल सोर्स कोड। सो वाज इट क्लियर? Will you be able to do it again if you are asked to? Like, will you use this feature in your projects? Pretty aware of this, Kushi, right? Cool. So, if you want, like Jyoti, you can take a screenshot if you wish. I believe you would have taken.
And I think we should end this now. Or Power, next time, like, try to speak, because once you are able to answer your doubt, it becomes really easy to share where the problem, like the problem which you are facing. Because if you are installing Git for the first time, you'll have to do some sort of configuration. तो उसका इंटरनेट पर तुमको ये मिल जाएगा. I'll share. ये देखो. हाँ, ये गेट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल, फिर यूजर का ईमेल डालना पड़ता है, फिर एक यूजर नेम डालना पड़ता है, इस तरह से. तो दिस व्हाट हैपेंस. अगर एक और फीचर है सबसे इम्पोर्टेंट, गेट लॉग बोलते हैं उसको. अभी फास्ट कमिट्स हुए रहते हैं, उसका तुमको स्टेटस मिलता है विद दिस हैश कोड. और ये हैश कोड है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ योर कमिट. मतलब दिस विल नेवर चेंज until and unless you make the changes on the commit itself. तो बाकी और भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. इसमें ये पता चल रहा होता है कि पैगबाइट इज द ऑथर, उसका ये ईमेल आईडी है, और ये कब कौन से डेट पे और कौन से टाइम पे चेंजेस किया है. लाइक आई शो यू अ प्रोजेक्ट. उसको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा. ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें देखो कितना सारा कमिट है. तो इसमें से ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विद हर्ष. तो इसमें ये दिखा रहा है कि हर्ष हैज मेड दी चेंजेस कब कब. अगर मान लो फ्यूचर में ये होता है कि हर्ष बोल रहा है कि भाई ये वाला जो कमिट था फुटर में इशू आ रहा है. देखो, इवन ही हैज नॉट यूज्ड डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर कमिट मैसेजेस. इट्स अ शॉर्ट प्रोजेक्ट, तो हमें समझ में आ जाएगा. अब अगर यहाँ पे हर्ष बोलते हैं कि राउटर में कुछ इशू है, वी नीड टू चेक इट अगेन, तो हम लोग वापस से इस कमिट मैसेज पे जाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि ये कमिट में क्या हुआ था. तो देयर इज अ टेक्निक, उसको बोलते हैं. आई शेयर दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन. तो इससे क्या होता है कि यू कैन ट्रैक एवरीथिंग ऑफ योर प्रोजेक्ट. और फ्यूचर में जाके कभी तुम्हारे पास ऐसा नहीं होता है कि पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप करो और दोबारा से स्टार्ट करो. क्लियर? खुशी, यू न्यू अबाउट गिट लॉग टू, राइट? ओके. देखो, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे कमांड्स हैं गिटलॉग में. तो एक कमांड तो नॉर्मल गिटलॉग हो गया. एक होता है कि तुम अपने कमिट मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, और ये एक ट्री बना के देता है. आई शो यू. जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो दिस इज हाउ द ट्री कम्स अप. ये देखो, मतलब ये है एक स्टार, ये एक पहला ब्रांच, फिर ये ब्रांच आगे बढ़ा, फिर एक और ब्रांच क्रिएट हो गया, 2 ब्रांच बन गए, फिर यहाँ से किसी ने एक और ब्रांच बना दिया. तो नाउ वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस. और जब इसमें मर्ज करेंगे तो ये इसमें मर्ज होगा, फिर ये यहाँ मर्ज हो रहा है. तो गेट में भी 2 तरह से मर्जिंग होता है. एक फर्स्ट, देखो टाइप भूल गया. ये देखो, फास्ट फॉरवर्ड और 3 वे. तो ये जो सिंपल वाला मर्ज होता है ना, जो स्टार बन के आता है फिर पहला दूसरा, इसको फास्ट फॉरवर्ड मर्ज बोलते हैं. और जो 3 वे होता है, जब मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट हो जाता है, तब 3 वे का काम आता है इस तरह के ब्रांचेस में. जब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तब. चलो, दिस विल बी लाइक वी विल शेयर दिस इन द नेक्स्ट सेशन. अगले बार के लिए होना चाहिए कुछ. शैल वी रैप अप? ज्योति, रैप अप कर सकते हैं. और पवन, दिस हैकटूबर फेस्ट इज कमिंग अप. सो आई बिलीव द नॉलेज विच यू रिसीव टुडे, इतना ही चाहिए होता है हैकटूबर फेस्ट में, वो इनिशियल टू मेक योर फर्स्ट 4 PRs. so you should create. we'll share a repository too, और कुछ वैल्यूएबल सा प्रोजेक्ट जो कि एक छोटा ही प्रोजेक्ट होगा, बट वहाँ पे तुम PR कर सकते हो एंड डू सबमिट दैट ऑन हैकटूबर फेस्ट वाले में, सो दैट यू कैन क्लेम सम goodies from DigitalOcean. So thank you for joining. You want to say something, Jyoti? Because I'm done. No, I've taken screenshot. Okay, thanks. So let's end this. I'm leaving. Yeah.